Hello and welcome back to a new chapter. And the name of the new chapter is From a Diary of Anne Frank. And we are going to deal with this chapter in detail. So let's continue. So now let's look into the roadmap for this video. First, we are going to deal with the girl behind the diary. Second, we are going to look into Alone in a Crowd. Third, we are going to personify Kitty. Fourth will be family versus teachers. Fifth will be Mr. Keesing's dynamics. And sixth, we are going to do some key takeaways so that our competency based preparation is done according to class 10th syllabus. So let's move forward. So students, to analyze any text, you really have to understand the environment that forged it. कोई भी text, कोई भी story समझने के लिए हमें उसके आसपास का environment समझना ज़रूरी होता है, right? So let's quickly look at the historical facts that set the stage for Anne's writing. अब Anne ने एक डायरी लिखी, Anne Frank ने. अब उस डायरी लिखने का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है हमें कि आखिर आने के दिमाग में वो सारी बातें चल क्यों रही थी, right? So let's see what was the timeline. Anne was born in Germany in 1929. Then by 1933, as the Nazis gained power, her father moved the family to Holland to escape persecution. Okay? But as the occupation extended, they were effectively trapped. Now notice this crucial date right there, July 1942. Okay? That is when the family goes into hiding in those concealed rooms in her father's office building. So 1942 में पूरी फैमिली एक रूम में चली जाती है उसके फादर की बिल्डिंग में, वहीं छुप जाती है. For how many years? For 2 whole years. This was her entire world, right up until her final entry in August 1944. So जो फाइनल एंट्री उन्होंने लिखी है एने ने अपनी डायरी में, दैट इज 1944. ठीक है. Now, this harrowing, unimaginable backdrop of the Holocaust surrounds her otherwise everyday teenage musings. Okay? जैसे कि हमने टाइमलाइन देख लिया. Now that timeline brings us to a massively common theme for exam question. एक कॉमन थीम की बात आ जाती है यहाँ पे उस टाइमलाइन को देखने के बाद. क्या है वो थीम? Her profound feelings of isolation despite her environment. सब कोई तो है उसके पास, she has a family, फिर भी वो isolate क्यों फील कर रही हैं? She makes this striking, almost jarring statement. क्या है वो स्टेटमेंट जो वो बनाती हैं? वो बोलती हैं, I don't have a friend. Now, as an analytical reader, जब हम क्लास 10 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें एनालाइज करना है हर बात को, राइट? क्रिटिकली एनालाइज करना है. सो अगर हम ये एनालाइज करें कि वाई शी इज सेइंग आई डोंट हैव अ फ्रेंड, वी नीड टू डीपली इन्फर इट, राइट? वाई ऑन अर्थ वुड अ गर्ल राइट दिस? एक छोटी सी लड़की ऐसा क्यों लिखेगी, आई डोंट हैव अ फ्रेंड? ठीक है, बिकॉज क्योंकि शी इज एक्सप्लिसिटली सेइंग दिस, शी हैज़ लविंग पेरेंट्स. आपने अपने बुक में पढ़ा होगा, उन्होंने लिखा है, अब अपनी जो क्लास 10 की टेक्स्ट बुक है उसमें एने फ्रैंक लिखती हैं कि उसके पेरेंट्स बहुत ही लविंग थे. 16-year-old सिस्टर है उसके पास, लविंग आंट्स हैं, अ गुड होम, एक अच्छा घर है, एंड अबाउट 30 पीपल शी कैन कंफर्टेबली कॉल फ्रेंड. और ऐसे 30 और लोग हैं जिनको वो फ्रेंड्स बुला सकती हैं. बट ऑन द सर्फेस शी सीम्स टू हैव एवरीथिंग. सर्फेस पे तो सब अच्छा दिख रहा है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी एवरीथिंग. सो वी रियली हैव टू आस्क आवरसेल्फ व्हाट इज शी एक्चुअली लैकिंग. जब सब कुछ ठीक है तो हम एज अ स्टूडेंट्स हमें अपने आप से ये पूछना कि आखिर आने की ज़िंदगी में क्या लैक कर रहा है. What Anne was lacking can be well illustrated by this vocabulary word here, which is confined. Now, confined का simple meaning क्या होता है? To tell personal things privately to a person that one trust. एक ऐसे इंसान को सारी personal बातें बता देना जिस पे हम trust करते हैं, right? So, Anne ने क्या realize किया that with her 30 friends, जो 30 उसके दोस्त उन्होंने बताए, उनसे सिर्फ she used to only talk about ordinary everyday things. इधर उधर की बातें, रोज़मर्रा की बातें ही हो पाती थी. They just have fun, which is great,
but she totally lacks a deep emotional relationship, right, where she can truly confide her inner most valuable or vulnerable thoughts, जहाँ पे वो अपनी सारी इनसिक्योरिटीज बता सकें। ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिससे वो सब कुछ अपने दिल की बातों को शेयर कर सके, और ऐसे लोग होते भी कम हैं। आपके बहुत दोस्त हो सकते हैं बट बेस्ट फ्रेंड्स एक या दो ही होता है, राइट, फॉर एवरीबडी, एवरी ह्यूमन बीइंग दिस इज सेम. So that is why she uses her language so meticulously. So she is talking about this word, right? This word is also acting as a paradox. She is completely surrounded by people. लोग उसके आसपास हैं, yet profoundly deeply lonely. लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा lonely है. So now let's move to section 3. Let's move to section 3, which is personifying Kitty. Now, this 13-year-old Anne Frank is going to create a true friend. एक सच्चा दोस्त बनाने वाली है. कैसे? So, how this girl who is highly observant, super ingenious, solve the intense isolation problem. जो ये isolation अकेलेपन का problem है, उसको वो 13 साल की लड़की कैसे सॉल्व करेगी? बहुत सारे बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, राइट? अकेलापन सबको आता है and nobody likes this isolation thing, right? So let's see what she's doing. She will deliberately choose to personify her diary. उन्होंने human characteristics किसको दे दिया? डायरी को ही एक human being की तरह देखने लगी, अपनी friend की तरह देखने लगी और उसको personify कर दिया, right? So she writes, I want the diary to be my friend and I'm going to call this friend Kitty. और उसका नामकरण भी कर दिया. क्या नाम रख दिया डायरी का? Kitty. So ह्यूमन बींग्स का नाम होता है, किसी नॉन लिविंग थिंग का तो आप नाम नहीं रखते, राइट? लेकिन इन्होंने उसको पर्सोनिफाई कर दिया. एंड गाइस एंड स्टूडेंट्स, दिस इजंट जस्ट सम क्यूट नेमिंग कन्वेंशन. ऐसे क्यूटली कुछ भी नाम रख दिया ऐसे नहीं है. It's a calculate, deliberate literary choice to enhance the image of a much needed companion in her imagination. ये आपके लिए एक हिंट है कि आखिर एने को कैसा फ्रेंड चाहिए था. तो आप वो जो नाम सुन करके ही आप बता सकते हैं कि 13-year-old के दिमाग में ये वर्ड किटी बता रहा है कि उसको इस टाइप का फ्रेंड चाहिए जो क्यूट हो, राइट, और आपकी बातें सुने. So the name is only giving you a hint कि what kind of friend she needed. And she literally breathes life into the pages. और जब वो डायरी में लिखती हैं तो ऐसा लगता है सच में वो डायरी के पेजेस नहीं, एक ह्यूमन बीइंग से बातें कर रही हैं. So let's break down exactly why she treats Kitty as a real person. अब हमें जानना है कि why Kitty was the real person for Anne Frank. Why Kitty का आंसर यहाँ पे है. सबसे पहला क्या है? फर्स्ट ऑफ, शी डेस्परेटली नीड्स अ नॉन जजमेंटल कॉन्फिडेंट. एक ऐसा फ्रेंड चाहती थी जो कॉन्फिडेंट हो, नॉन जजमेंटल हो, मतलब उसको जज ना करे. कोई भी पर्सनल बात अगर वो किसी से बोले तो वो ये ना सोचे कि अरे ये कैसी लड़की है, राइट? सो समवन हु विल जस्ट लिसन वेरी पेशेंटली. तो डायरी क्या है? चुपचाप सुन रहा है, राइट? कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा है. दैट इज व्हाई इट वाज किटी. Second, she explicitly rejects the idea of just jotting down facts like you would in a boring standard logbook. जैसे आप एक छोटी सी स्टैंडर्ड लॉगबुक या किसी बुक में पॉइंट्स लिख लिया, कोई फैक्ट्स लिख लिया, वो नहीं करना चाहती थी वो यहाँ पे. She was wanting to treat Kitty as a friend, so she completely changes the entire tone and language of her entry. ठीक है, जो डायरी में जो उन्होंने लैंग्वेज यूज किया वो फैक्ट्स नहीं थे, उन्होंने चेंज कर दिया, टोन ही चेंज कर दिया डायरी लिखने का. सो व्हाट डज दिस मीन्स? सो जो ये लैंग्वेज एक कन्वर्सेशनल लैंग्वेज हो गया, right? It opens the door for intimate conversational language and what we often call diary language. तो ये जो language हुआ उसको कहा जाता है diary writing language. ठीक है, एक conversation type का. She started with the diary and she completed with everyday expressions and contracted forms. दिन भर का उसमें बातें लिख दिया उसमें, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टेड छोटे छोटे फॉर्म्स में. She treats the diary as the ultimate insider. और lastly वो अपनी डायरी को कैसे
ट्रीट करते हैं एज अ टॉप सीक्रेट एजेंट, जिसके पास आप कुछ भी बोलो वो आपका सेफेस्ट प्लेस है, राइट। सो जब आप एग्जाम में लिखोगे अबाउट दिस इन एन एग्जाम, डेफिनेटली रिमेंबर टू पॉइंट आउट दैट किटी वाज हर क्रिएटिव ब्रिलियंट सॉल्यूशन टू प्रोफाउंड इमोशनल आइसोलेशन। सो आप ये जरूर लिखें कि किटी उसका एक ब्रिलियंट आइडिया था आने का, आइसोलेशन से बचने के लिए, अकेलापन से बचने के लिए किटी से ब्रिलियंट आइडिया कुछ और हो ही नहीं सकता था आने के लिए। दैट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया फॉर जस्ट अ 13-year-old गर्ल। तो चलो सेक्शन 4 में हम बातें करेंगे फैमिली वर्सेस टीचर्स या रिलेशनल डायनेमिक्स। So now a really great way to build a character sketch is to elucidate how Anne views the different authority figures in her life. एने को जानने के लिए जानना जरूरी है कि एने अपनी लाइफ से जुड़े दूसरे दूसरे लोगों को किस नजरिए से देखती थी, उसकी सोच जानना जरूरी है एने की। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ हर मोस्ट एडोरेबल फादर शी इज एवर सीन। पापा से शुरू करते हैं। सो एक इंसिडेंट है जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसके फादर एडोरेबल थे या नहीं, राइट। ऐसा एने मांगती थी कि उनके फादर बहुत ही एडोरेबल पर्सन थे। सो व्हेन हर ग्रैंडमदर डाइज, she poignantly notes that her grandma's candle was lit along with the rest on her 1942 birthday out of lingering love, just pure warmth। ठीक है, जब उनकी ग्रैंडमा गुजर जाती हैं फिर भी ग्रैंडमा का एक कैंडल लगता है ऑन हर 1942 बर्थडे पे, उसकी फैमिली ने लगाया होता है क्योंकि वो लोग मिस कर रहे होते हैं अपनी ग्रैंड। सच वार्मथ इन द फैमिली, राइट। इसी वार्मथ एंड प्यार के कॉन्ट्रास्ट में वी कैन सी एनीज पॉइंट ऑफ व्यू। 13-year-old गर्ल ये इमोशंस नोटिस कर रही है कि फैमिली ऐसा सोचती है, उसी जगह वो एक और चीज नोटिस कर रही है अबाउट हर टीचर्स एंड शी सेज व्हेन शी इज थिंकिंग अबाउट हर टीचर एंजाइटी इज इंड्यूस्ड इन हर, राइट। She hilariously calls them the most unpredictable creatures on earth। मजाक में ही उन्होंने टीचर्स को क्रीचर्स कह दिया, ह्यूमन बीइंग ने भी नहीं कहा, क्रीचर्स कह दिया, और वो भी अनप्रेडिक्टेबल, जिनको आप समझ नहीं सकते। टीचर्स कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। सो शी इज नोटिसिंग दिस, और शी इज ऑल्सो नोटिसिंग when her entire class is literally quacking in its boots, making bets over who is going to pass to the next form। सो जब पूरी क्लास टेंशन में थी कि आखिर कौन पास होगा कौन फेल होगा, तब एने फ्रैंक किसके बारे में सोच रही थी? टीचर्स के बारे में सोच रही थी कि टीचर्स एक ऐसे क्रीचर है, वो किसी को भी पास कर सकते हैं, किसी को भी फेल कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। एक 13-year-old गर्ल के दिमाग में ये चल रहा था। अपने पापा के बारे में अलग सोच, टीचर्स के बारे में अलग सोच, राइट। This shows us a girl who is emotionally anchored by her family for sure। एकदम अपनी इमोशनली कनेक्टेड है फैमिली से, एकदम श्योरली, वी नो दिस। बट ऑल्सो हाईली ऑब्जर्वेंट, विटी एंड अ लिटिल वेरी। सो शी इज वेरी ऑब्जर्वेंट, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करती है वो, उस पर उनकी सोच डेवलप होती है। शी इज इंटेलिजेंट, राइट। इसी बात को लेकर के वी कैन मूव टू सेक्शन 5 नाउ। So students, section 5 is the Mr. Keesing's dynamic। ठीक है, अब ये जो डायनेमिक है is perhaps the most famous anecdote from her school days। सबसे फेमस इंसिडेंट है, right, from her school days, and it serves as a picture perfect character sketch। ठीक है, देखें जरा। Mr. Keesing is an old foggy, a very strict old fashioned math teacher, and Anne, well, she is an incredible talkative student, frequently getting scolded while the rest of the class just laughs। So जो कीजिंग है वो फॉगी है, फॉगी मीन्स ओल्ड जमाने को बिलीव करने, ओल्ड फैशनड है, ठीक है, वेरी स्ट्रिक्ट है, मैथ्स की टीचर है ऑब्वियसली। लेकिन एने भी कम नहीं है, शी इज वेरी टॉकेटिव, कंटिन्यूसली क्लास में टॉक करती है, एंड शी इज नॉट इनटू मैथ्स। ठीक है, Mr. Keesing is naturally annoyed because Anne simply talks way too much during his lessons, और especially Mr. Keesing के classes में Anne बहुत ही ज्यादा बातें करती। So how does an old-fashioned teacher handles an talkative student? कैसे handle करेगा एक teacher? Obviously,
आप पढ़ाई के बीच में बातें करोगे तो टीचर तो इरिटेट होगा ही, और जब टीचर इरिटेट होगा तो ऑब्वियसली पनिशमेंट मिलेगा, राइट? We know that Mr. Keesing is going to punish Annie, but Mr. Keesing मार पिटाई वाले इंसान है नहीं, तो और क्या तरीका हो सकता है पनिशमेंट का? Yes, you people have guessed it right, extra homework. So the progression of these punishments is honestly pure comedy, but it's also highly revealing of Annie's intellect. So ये जो punishment मिलेगा होमवर्क का, ये कॉमेडी रिलीफ है, स्टोरी में आपको हंसी आएगी, बट यहाँ पे आपको एने के इंटेलेक्ट के बारे में भी पता चलेगा कि एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल ने उस पनिशमेंट को कैसे अपने इंटेलिजेंस से हैंडल किया. सो लेट्स मैप इट आउट. सबसे पहला स्टेप 1, मिस्टर कीजिंग असाइंस एन एसे टाइटल्ड अ चैटर बॉक्स. पहला ऐसे था, टाइटल क्या था उसका? अ चैटर बॉक्स. तो एने ने आंसर क्या लिखा? एने राइट्स अ सुपर कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट दैट टॉकिंग इज अ फीमेल इनहेरिटेड ट्रेट from her mother. And hey, there's not much you can do about inherited traits. Mr. Keesing starts laughing hearing it. But once she talks again, we hit step 2. पहले ही स्टेप में इन्होंने बोल दिया कि अरे ये तो बातें करना तो मुझे मेरी माँ से मिला है, जीन्स में आया है, आप उसको कैसे बदल सकते हैं? बायोलॉजिकली जो मेरे अंदर है, मेरी मम्मी के थ्रू, मेरी माँ भी बहुत बातें करती हैं, वो तो चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, तो मिस्टर कीजिंग थोड़ा हंसते हैं उसके इंटेलिजेंस पे कि अरे वाह क्या आंसर दिया है, लेकिन वो क्लास में बातें करना छोड़ती नहीं. तो स्टेप 2, सेकेंड पनिशमेंट थोड़ा सा और हार्श होगा. द सेकेंड essay which she gets was titled an incorrigible chatterbox. लेकिन क्या वो बातें करना बंद करेंगी? नहीं. So finally after she talks through a third lesson, he has officially had enough. तीसरी बार भी उन्होंने उस ऐसे को इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स की पे ऐसे लिखने के बावजूद वो एने फ्रैंक बातें करना बंद नहीं करती, जिससे टीचर बहुत अनॉयड हो जाता है. एंड स्टेप 3 में उन्होंने एक तीसरा ह्यूमिलिएटिंग, नाउ पब्लिक ह्यूमिलिएशन करना चाहता है टीचर. मिस्टर कीजिंग चाहते हैं क्लास में ऐसा ऐसे उनको बोला जाए एने फ्रैंक को लिखने के लिए, जिसको सुन करके उसके दोस्त, उसके जानने वाले सब हंसे और वो थोड़ा शर्म करे, राइट? और शर्म के मारे एने चुप हो जाए. शी विल नॉट टॉक अगेन इन मैथ्स क्लास. सो द नेम ऑफ द एसे इज क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स. सो actually we see how she reacts to that final assignment. We will see that, ठीक है, कि कैसे उन्होंने फाइनल असाइनमेंट को आंसर किया. लेकिन आई वॉन्ट टू जीरो इट ऑन दिस पावरफुल वोकैबुलरी वर्ड. बिफोर गोइंग इनटू दैट, पहले हम ये वोकैबुलरी वर्ड देखना चाहते हैं. से नंबर 2 में जो वर्ड था इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स. तो इनकॉरेजिबल, व्हाट डज दिस मीन्स? इट मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड. कोई चीज ऐसी जो करेक्ट नहीं कर सकते. यूजुअली किसके साथ यूज करते हैं? बैड क्वालिटी के साथ, ऐसी क्वालिटी किसी के अंदर जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते. सो मिस्टर कीजिंग व्यूड हर टॉकिंग एज दिस परसिस्टेंट अनोइंग फ्लॉ. तो मिस्टर कीजिंग को ये अनोइंग लगता था उसका टॉकिंग, बात करना क्लास में, मैथ्स क्लास के बीच में. But what is really fascinating here is how Anne cleverly leans right into it. She doesn't apologize at all. बिल्कुल सॉरी नहीं बोलती इन सारे पनिशमेंट में, ऐसे लिखने की पनिशमेंट्स में. शी इज लीनिंग इनटू दिस पनिशमेंट्स, राइट? She argues it's as an uncorrectable inherited traits. अपने जो ये inherited traits हैं इसके लिए वो लड़ाई करती हैं, अपनी टॉकिंग के लिए वो अपना हक समझ के लड़ाई करती हैं टीचर्स से. शी इज जस्ट इनक्रेडिबली सेल्फ अवेयर. शी नोज हर सेल्फ. ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी कोई बच्ची है 13 साल की ऐसी बात कर रही है. शी इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, राइट? So the crucial turning point is how she handles that final assignment. ठीक है? Annie was very smart. She noted Mr. Keesing was trying to play a joke on her, but she made sure the joke was on him. Annie को पता चल गया था मिस्टर कीजिंग उसका मजाक उड़ा रहे इन ऐसे इसको दे दे करके, बट वो मजाक उड़ने नहीं देना चाहती थी अपना. वो चाहती थी कि मजाक उल्टा पड़ जाए मिस्टर कीजिंग के ऊपर. So
अभी इतने सारे एसेस एक ही टॉपिक पे लिख लिख के वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, बट उसी समय उनकी फ्रेंड स्टैन ने ऑफर किया कि शी विल हेल्प हर राइट द एंटायर एसे इन वर्स, अ पोएम। मैंने बोला कोई बात नहीं है, जो क्वैक क्वैक वाला ऐसे है हम ऐसे फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम पोएम फॉर्म में लिखेंगे। और उनके फ्रेंड ने उसमें हेल्प किया। और ये जो आइडिया था उसके फ्रेंड का वॉज अ ब्रिलियंट आइडिया। एक फनी पोएम डेवलप होता है about a father swan biting his three baby ducklings to death simply because they quacked too much, right? So ये जो फादर स्वान है इस पोएम में, उन्होंने अपने डकलिन बच्चों को मार दिया क्योंकि वो डकलिन जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे ना। आप ये समझ सकते हैं कि वो स्वान कौन है। वो स्वान है मिस्टर कीजिंग, जो इनोसेंट बच्चों को बातें करने के लिए बहुत डांट लगाते हैं, पनिश करते हैं, ह्यूमिलिएशन करने की कोशिश करते हैं। यस, और इससे क्या होगा, बच्चों की मासूमियत खत्म हो जाएगी। सो शी रोट अ पोएम इन अ फनी वे। डायरेक्टली वो मिस्टर कीजिंग को स्वान नहीं बोल रही थी, उन्होंने ऐसा लिख दिया पोएम में। Mr. Keesing, to his credit, took the joke in the right spirit, read the poem to the class, and finally allowed Annie to talk without assigning extra homework. Mr. Keesing को poem समझ में आ गई कि आखिर स्वान कौन है, लेकिन मिस्टर कीजिंग ऐसे टीचर नहीं थे कि मजाक को मजाक में ना ले। उन्होंने मजाक को मजाक की तरह ही लिया और उन्होंने एनी को परमिशन दे दी कि आप बातें कर सकते हैं, एंड उसको कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। सो शी लिटरली वन हर स्ट्रिक्ट टीचर्स रिस्पेक्ट थ्रू प्योर इंजेन्युइटी, राइट? अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट उसने पा लिया। सो लेट्स मूव टू सेक्शन 3 नाउ। Section 6, we are talking about keywords and the takeaways, right? अगर जो हमने अंडरस्टैंड किया है पूरे टेक्स्ट को, so if we are going to be asked about the character sketch of Anne Frank based on these entire early entries, so क्या होगा? Here is our framework. First, she possesses a mature and insightful mind. एक बच्चे की तरह माइंड नहीं है उनका, mature है और insightful mind है। She totally understands the nuances of human relationship. हर रिलेशनशिप के हर परत को वो पहचानती हैं, राइट? सेकेंड, शी इज डीपली लोनली डिस्पाइट हैविंग अ वाइड सर्कल। बहुत लोनली है, बहुत बड़ी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, बट फिर भी शी इज लोनली, एंड इट इज अ पैराडॉक्स, राइट हियर। थर्ड, शी इज अ रिमार्केबली सेल्फ अवेयर चैटरबॉक्स। वो सेल्फ अवेयर है, वो बातें कर रही हैं लेकिन वो अवेयर हैं अपने बारे में, एंड शी ओन्स हर ट्रेट्स। वो जो बातें करने का उनके अंदर पर्सनालिटी है उससे वो शर्माती नहीं है, शी इज ओनिंग इट। एंड फोर्थ, शी इज ingenious, witty, and highly observant, which is perfectly proven by her triumph over Mr. Keesing, जो प्रूव हो गया कि सच में वो ऐसी हैं जब वो जीत जाती है अपने टीचर से। उनके पनिशमेंट में उनको टीचर को ह्यूमिलिएट करने नहीं देती, मजाक उड़ाने नहीं देती, राइट? So let's memorize these points and back them up with the example we discussed today. And you will be very knowledgeable after reading this. Now, students, I want to wrap up our video by leaving you with this really provocative thought straight from the text itself. Early on, Anne wrote that it seemed to her that later on neither she nor anyone else would be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. ठीक है? So I want you to think about the massive global legacy of her very private diary today. It is translated into dozens of languages. ये जो डायरी एनी फ्रैंक की हर लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी, और even adopted into films and plays and read by millions upon millions worldwide. What she writes, ठीक है? It turns out the deeply personal, beautiful structures and witty thoughts of this young girl in hiding become one of the absolute most powerful and enduring voices in human history. ये जो लिख दिया उस 13-year-old girl ने, वो इतना ज्यादा पढ़ लिया गया है लोगों के द्वारा कि it has become one of the most powerful emotional voice and enduring voice in human history. So thank you so much for joining me
and keep analyzing critically, and we'll meet in the next video.